That day was the death blow to Satan's power. It ended everything. वो दिन था जब मौत और शैतान की ताकत को नेस्तो नबूद कर दिया गया। उसने हर चीज का इख्तिताम कर दिया। And I can see him there. He was Eden's lamb from the very first shadow that come of it. और मैं उसे वहां देख सकता हूं। वो अदन का बर्रा था। पहली अलामत में ही वो नजर आता है। When Abel by faith offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. He must have tied a grapevine around the lamb's neck, drug him up to the rock, took a rock in his hand for a lance and pulled his little head back, and chopped and hacked him until he died. And his wool bathed with his own blood. He watered in his blood. It was a shadow. जब हाबल ने ईमान के वसीले काइन से अच्छी कुर्बानी गुजरानी तो उसने अंगूर की बेल बर्रे के गले में बांधी और उसे उस चट्टान तक घसीटता हुआ ले गया और उसने अपने हाथ में एक नोकीला पत्थर लेकर उसका छोटा सा सर पीछे की तरफ खींचकर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जब तक वो मर नहीं गया और उसका ऊन उसी के लहू में भीग गया और वो अपने ही लहू में लोटपोट हुआ। ये एक अलामत थी। But on that day at Calvary, there wasn't a lamb of this earth, but it was the Lamb of God that was dying, wallowing in His own blood. लेकिन उस दिन वहां कलवरी पर इस जहान का बरा नहीं, बल्कि वो खुदा का बरा था जो मर रहा था और अपने ही लहू में लौट रहा था। He was hacked and chopped and beat and spit on and slammed and smacked and everything by the world. And the blood dropping off of his locks. वो मारा पीटा और घायल किया गया और उस पर थूका गया और जोर से उसे मारा गया और उसे थप्पड़ मारे गए और इस जहान की तरफ से सब कुछ किया गया और उसके बालों से लहू टपक रहा था। When Abel's lamb died, it died speaking in a language that Abel could not understand. It was bleeding. And when God's lamb died that day at Calvary, He spoke in a language that no one understood Him. My God, why hast thou forsaken me? जब हाबल का बरा मरा तो वो एक जुबान बोलते हुए मर गया जिसे हाबल नहीं समझ सका था। वो चिल्ला रहा था। और जब खुदा का बर्रा उस दिन कलवरी पर मुआ तो वो भी एक जुबान बोला जिसे कोई ना समझ सका। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। God's lamb, hacked to pieces, chopped up. He was the very lamb that Abel had in mind when he seen the promised seed of the woman. ये खुदा का बर्रा था जो घायल किया गया और टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। ये वही बर्रा था जो हाबल के जहन में था जब उसने औरत की माऊदा नस्ल को देखा था। He was the lamb that Daniel saw that was shoot out of the mountain without hands. He was the wheel in the middle of the wheel for the prophet. ये वो बर्रा था जिसे दानियल ने देखा था जो बगैर हाथ लगाए चट्टान से काटा गया। वो नबी के लिए पहियों के बीच का पहिया था। All they had foresaw was met on that day at Calvary. That brought the great thing in. That broke the back of Satan. और वो सब कुछ जो उन्होंने पहले से देखा था वो उस दिन कलवरी पर पूरा हुआ। ये अजीम काम वहां किया गया जिसने शैतान की कमर को तोड़ डाला। First, we should seek what that day meant. Second, we should see what that day has done for us. Now, what it did for us. Now, third, let's look at what we ought to do for that day. पहले हमें तलाश करना चाहिए कि उस दिन का क्या मतलब है। दूसरा, हमें देखना चाहिए कि उस दिन ने हमारे लिए क्या किया। अब देखें उसने हमारे लिए क्या किया है। अब तीसरा, हम देखें कि हमें उस दिन के लिए क्या करना चाहिए। What ought we to do? First, we should look into it.
For it's a great day. Greatest of all the days. Sin price was settled. Satan's power was broken. हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये एक अजीम दिन है, बल्कि सब दिनों से अजीम है। इस दिन गुनाह की कीमत अदा कर दी गई और शैतान की ताकत को तोड़ दिया गया। And now we want to see what we should do in return. Now in returns, when Jesus died at Calvary, on Calvary that day, He not only paid the price for our sins, but He also paid the price and made a way that we could follow Him. For we, as the fallen Adams, that's been redeemed. और अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमें इसके बदले में क्या करना चाहिए, इसके इवज क्या करना चाहिए। जब यीशु उस दिन कलवरी पर मुआ तो उसने हमारे गुनाहों की कीमत अदा कर दी, और फक्त कीमत ही अदा नहीं की बल्कि हमारे लिए रास्ता भी खोल दिया ताकि हम उसकी पैरवी कर सकें, क्योंकि हम गिरे हुए आदम की तरह थे जो बचाए गए हैं। As the Spirit led Adam, the first Adam, by the Spirit that had control of all nature, then we, the second Adam, or the man of the earth, has been redeemed by Christ from the day of Calvary, can follow Him. जैसे कि रूह ने आदम की रहनुमाई की, पहले आदम की रहनुमाई रूह ने की ताकि वो सारी फितरत को संभाले। फिर हम दूसरा आदम यानी जमीनी इंसान जो मसीह के वसीले उस दिन कलवरी पर बचाया गया, उसकी पैरवी कर सके। Now when He died at Calvary, He made a way. He gave up the Spirit, the Holy Spirit, that sent it back to the earth for you and I to live by. That's what Calvary means to us, to follow Him. अब जब वो कलवरी पर मुआ तो उसने एक रास्ता बना दिया। उसने रूह दिया यानी पाक रूह, जिसे उसने वापस जमीन पर भेजा, जिसके वसीले मैं और आप जिंदा रह सकते हैं। कलवरी का हमारे लिए यही मतलब है कि हम उसकी पैरवी करें। First look into it. See what it did for us. And now what must we do in regards to it? What must you and I do? पहले इस पर गौर करें और देखें कि उसने हमारे लिए क्या किया है और इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। मुझे और आपको क्या करना चाहिए। Now, we say, well, I appreciate that. That's very fine. But we got to accept it. And to accept it is to accept His person, Christ in our heart. अब आप ये कहते हैं, ठीक है, मैं इसको सराहता हूँ, ये बहुत अच्छा है, मगर हमें तो इसे कबूल करना चाहिए और इसको कबूल करने के लिए उसकी शख्सियत को कबूल करना चाहिए, यानी मसीह को अपने दिल से कबूल करना चाहिए। Then we are free from sin, therefore there's no sin shackles hanging on us at all. God, just like we had never sinned, the perfect sacrifice made us perfect. For Jesus said, be therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. फिर हम गुनाह से आजाद हैं, फिर हमारे ऊपर गुनाह की बेड़ियां लटकी हुई नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। खुदा की नजर में हम ऐसे हैं जैसे हमने कभी गुनाह किया ही नहीं। कामिल कुर्बानी ने हमें कामिल कर दिया है, क्योंकि यीशु ने कहा, कामिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। Then there's no more to be done, but we are made perfect in the presence of God. Now, there's where we lose our position. If we don't watch, we try to look back to what we was. And as long as we look back to what we was, the sacrifice means nothing to us. फिर कुछ और नहीं करना है, क्योंकि हम खुदा की हजूरी में कामिल हैं। अब वहां जहां हम अपना मकाम खो बैठते हैं, वहां हम ध्यान नहीं देते, बल्कि हम पीछे मुड़कर ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम क्या थे। और जब तक हम पीछे मुड़कर देखते रहते हैं कि हम क्या थे, तो फिर कुर्बानी हमारे लिए बेअसर है। Oh, can't you see it, dear? I would not try the job. I can't. And neither can you. There's no need of trying. You're lost to begin with, as long as you look to what you've done. But don't look to what you've done. Look what that day on Calvary did to you. हो कलीसिया, क्या आप ये नहीं देख सकते? मैं नहीं करूंगा,
मैं इस काम के लिए कोशिश नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कर सकता और ना ही आप कर सकते हैं। हमें ये करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जब तक आप उस पर निगाहें लगाए हुए हैं जो आप कर चुके हैं, तो फिर आप खोए हुए हैं। उस पर मत निगाहें लगाएं जो आप कर चुके हैं, उस पर निगाहें लगाएं जो उस दिन कलवरी पर आपके लिए किया गया है। It paid your price. It settled the question. Your sins be as scarlet. They're as white as snow. Red like crimson, white like wool. कलवरी पर आपकी कीमत चुका दी गई है और सजा खत्म हो चुकी है। आपके गुनाह चाहे किरमजी हों, बर्फ की मानिद सफेद हो जाएंगे, किरमजी की तरह लाल हों, ऊन की तरह उजले हो जाएंगे। Then you have no sin. You are perfectly sinless. No matter what you've done or what you do, you're still sinless as long as you've accepted Jesus Christ as your Savior. Your sins are forgiven. And anything's forgiven is remitted and forgot about. फिर आप में कोई गुनाह नहीं, आप मुकम्मल तौर पर मुबर्रा हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या क्या किया है और आप क्या करते हैं, आप फिर भी मुबर्रा हैं। जब से आपने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। कोई भी चीज जो माफ कर दी जाती है, उसका मतलब है भूल जाना और बहाल करना। Then what does it do? It gives you, after that condition, His Spirit to follow Him. And to do as He did for others who is following on. फिर ये क्या करता है? इस हालत के बाद वो पाखरू देता है और पाखरू उसकी पैरवी करता है और वही करें जो उसने किया है उनके लिए जो पीछे आ रहे हैं। He was just one man, the perfect man. He gave his life and he made an example for you. वो बस एक कामिल इंसान था, उसने अपनी जान दे दी और हमारे लिए एक नमूना तैयार कर दिया। Now what must we do? Now the first thing I want to say is Jesus never lived for himself. His life was spent for others. That's perfectly eternal life. अब हमें क्या करना चाहिए? अब पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वो है यीशु कभी भी अपने लिए नहीं जिया, उसकी जिंदगी दूसरों के लिए थी। यही अब्दी और कामिल जिंदगी है। When you say you go to church and you do good things, that's fine. But when you live your life to yourself, you have an eternal life. जब आप कहते हैं कि आप चर्च जाते हैं तो ये अच्छा है, ये अच्छा काम है जो आप करते हैं, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी अपने लिए जीते हैं तो फिर आप में अब्दी जिंदगी नहीं है। Eternal life is living for others. It proved it when he come in the Lamb of God. He lived and had eternal life because he did not live for himself, he lived for others. अब्दी जिंदगी दूसरों के लिए जीना है। जब वो खुदा का बर्रा आया तो उसने साबित कर दिया उसमें अब्दी जिंदगी थी और वो जिया, और वो अपने लिए नहीं जिया बल्कि दूसरों के लिए जिया। And you receive eternal life by receiving that day, and you don't live for yourself no more, you live for others. और आप जब उस दिन को कबूल करते हैं तो आप अब्दी जिंदगी पाते हैं। फिर आप अपने लिए नहीं जीते बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। Someone said, how can you stand and let anybody call you such bad names? You don't live for yourself. You live for others that you might redeem that man. किसी ने कहा, आप कैसे रुक सकते हैं जब कोई आपको ऐसे बुरे नामों से पुकारता है? आप अपने लिए नहीं जीते बल्कि आप दूसरों के लिए जीते हैं ताकि आप उस शख्स को बचा लें। You become sons. And the trouble of it is the church has forgot they were sons. आप बेटे हैं, मगर परेशानी ये है कि कलीसिया भूल चुकी है कि वो बेटे थे। You are sons. You're taking Christ's place. You are sons, so don't live for yourself. Live for others. आप एक बेटे हैं और आप मसीह की जगह ले रहे हैं। आप बेटे हैं, बस
अपने आप के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिंदा रहें। Well, Brother Branham, I can live for this brother because he sure is a nice man. That's not it. Live for that man who hates you. That's right. Amen. Live for that person who would kill you if they could. That's right. That's what they've done to him. They killed him and he died that he might save them. That's eternal life. अच्छा भाई ब्रैनम, मैं इस शख्स के लिए जी सकता हूँ क्योंकि ये शख्स यकीनन एक अच्छा इंसान है। इसका मतलब ये नहीं है उस शख्स के लिए जिए जो आपसे नफरत करता है, उस शख्स के लिए जिए जो आपको कत्ल करना चाहता है। यही था जो उन्होंने उसके साथ किया। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और वो मर गया ताकि वो उन्हें बचा सके। यही अब्दी जिंदगी है। When you get that's in your bosom, you're facing heaven then. But you sacrifice your own things. Give them up like the sheep gives its wool. Amen. You look on towards Calvary. जब आपके दिल में ये है तो फिर आपका चेहरा आसमान की तरफ है। तब फिर आप अपनी चीजों को कुर्बान कर दें, उन्हें दे दें जैसे भेड़ अपनी ऊन दे देती है। अपनी निगाहें कलवरी पर लगाएं। I hope this helps you to get in a place. That's what the tabernacle, that's what all people has got to do, is find out what you are and what's the purpose. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको उस मकाम पर ले जाएगा। यही टेबरनेकल है, यही सब लोग हैं जिन्हें ये करना है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या करना है और आपका मकसद क्या है। Church isn't going to church just to play music, sing songs. Church is a place where correction, judgment begins at the house of God. Amen. Amen. कलीसिया चर्च में इसलिए नहीं आती कि सिर्फ म्यूजिक बजाए या फक्त गीत गाए। कलीसिया वो जगह है जहां असलाह होती है। अदालत खुदा के घर से शुरू होती है। We must reckon ourselves dead and alive to Christ. Then He made the way that we could sacrifice ourselves to His service, to follow Him. If we follow Him, we lead the life that He led. That's wonderful. हमें अपने लिए मुर्दा और मसीह के लिए जिंदा होना चाहिए। उसने ये राह निकाली है कि हम अपने आप को उसकी खिदमत के लिए कुर्बान कर दें और उसकी पैरवी करें। अगर हम उसके पीछे चलते हैं फिर हम अपनी जिंदगी उसकी तरह गुजार सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। Jesus said and spoke of it. Let me just give you a few quotations on it. Listen close. Don't miss it. Jesus said it that day He would separate the people like the sheep and the goats. यीशु ने कहा और इस बारे में मैं बोला। मैं इसके बारे में आपको चंद हवाले देना चाहता हूँ। गौर से सुने, इसको छोड़े मत। यीशु ने कहा उस दिन वो लोगों को अलग अलग करेगा जैसे भेड़ों को बकरियों से अलग किया जाता है। And He would say to the goats, stand on the left side, and to the sheep, stand on the right side. और बकरियों से कहेगा बाएं हाथ पर खड़ी हो जाएं और भेड़ों को कहेगा दाएं हाथ पर खड़ी हो जाएं।